नमस्तेभ्याय गौर्याय नमस्कार्याय जावर्याय नमः प्रधनाय श्रोत्रणाय नमः धार्याय जालाज्याय जा नमस्तेभ्याय दिव्याय नमस्ते विद्याय भवाक्याय जा नमः हिरण्याय भवक्षाय नमः समुद्राय दक्षिणाय जा नमः पद्मे नमस्ते नमः गोष्ठ्याय वृत्याय जा नमः सल्क्याय वेत्याय नमः काष्ठाय वेदाय जा नमः हृदयाय वेदाय नमः भावयामहे Shirdi Sai, Shirdi Sai, Vishwa Sai, Vishwa Sai, Sai apne सदा सहाय. Sairam, Happy New Year to everyone. I'm very pleased to know that Ashok Vyas has started a new program and will be aired on starting from next week, January first week in 2012. And this is a very important program for all Sai devotees in America and in India. The program consists of a recital of Sai Satcharitra and some interviews and also devotee experiences also. And I just had the privilege of reviewing the first segment, and I was so pleased, and I have no doubt to say this is going to be one of the best programs on Shirdi Sai Baba, that all the devotees will be extremely happy to listen to that every week on ITV. Namaskar. Om Shri Sai Ram Gurudeva Datta. This is a mantra, very profound one, that has come to us by the grace and divine presence of Vishwayogi Vishwamji Maharaj. And it is my distinct pleasure and honor to be with him today while we begin this new program that is going to be talking about Shirdi Sai Baba, and also each week there will be reading of one chapter of Sai Charitra as a part of this program also. Baba, while I offer my pranams at your feet, I would request you to share with us the significance of Sai Charitra. So, first of all, I am very happy to know that you are starting Sai Satcharitra on ITV, so as everyone can be utilized and may be benefited. Sai Satcharitra Parayan helps us to throw away all the negative forces happening in our life, and we can set right the Navagraha, or rays coming from Navagrahas, the rays coming from Navagrahas, those rays which are negative and affecting us, so we can rectify and we can put on the right path also. So if we reading chanting Sai Satcharitra means we are welcoming Sai to sit before us, and we are sitting in the magnetic field of Sai, so as we can be benefited, transmitted, the power is being transmitted from Sai to us, and our mind is mixing and merging with the Sai mind. The vibrations, mental vibrations, our mental vibrations are going and merging with the Sai mental vibrations, and they are purified and they are coming again into our mind. So it purifies the mind and it purifies the body. It purifies our life. So transmission will be made when we are chanting. When we are chanting, we are entering into the magnetic field of Sai, and we will be charged from Sai, and we will be benefited in the life. So Sai Satcharitra Parayana is very good and advisable, and it is while you are reading, chanting the Sai Satcharitra in ITV, that means you are making all the people who are visiting the TV into the magnetic field of Sai, and
through you, your body, you are transmitting Sai power into their brains and hearts. Satyanam, Satyanam, Satyanam ji bolo. Nitya Nitya japiye Hari Naam ji bolo. Nitya Nitya japiye Hari Naam ji bolo. Satyanam, Satyanam, Satyanam ji bolo. Satyanam, Satyanam, Satyanam ji bolo. जय हो। सबसे पहले सभी दर्शकों को नववर्ष का शुभकामनाएं। और ये साईं बाबा के प्रोग्राम, जो नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है, अशोक जी व्यास जी जो शुरू कर रहे हैं, उनके लिए मैं उनको बधाई देती हूँ। और हमारा अहम सौभाग्य है कि इस मौके पे हम कुछ बोलने का मौका मिला है। और मैं एक अशोक जी की ही लिखी हुई छोटा सा एक पद मैं गाती हूँ, गा के बताती हूँ। शिरडी साईं, शिरडी साईं, विश्व साईं, विश्व साईं, साईं अपने सदा सहाय, साईं अपने सदा सहाय, साईं अपने सदा सहाय। शिरडी साईं, शिरडी साईं, विश्व साईं। स्वामी सुखेंद्र करम अयुता आवाकरा साईना चिन्मय के सुख धाम ज्योति उड़ाए जाना मैना चेत पाठ लग्न के बाबा ने कथा के गुरु बुद्धि का काटी सुंदरी चढ़े सोरी। December 25th, 2005, I came here, I wept a lot, but he took all my pains. He is my God. Whatever I have problem, whenever I have problem, I always tell him, he is going to solve, always till there, he is till now also, my whole family dedicated to Baba. Venkatji, I think probably it is his design that again today in 2011, today is 25th December and we are at his feet. जय हो व्यास जी, आपने इतनी कृपा की है कि
साईं बाबा के बारे में मैं कुछ कहूँ, आपने मुझे इसके लिए चुना ही, ये कहूँगा सच में मैं धन्य हो गया। अब सब लोग जानते हैं कि साईं बाबा जो शिरडी के हैं उनका ध्यान मंगलकारी है और उनका गुणगान, नेचुरली उनका गुणगान कल्याणकारी है। मैं कुछ अपने थोड़े से अनुभव बताता हूँ। मैं सबसे पहले 62 में उनके दर्शन किए, मतलब समाधि के। उसके पहले मैंने सिर्फ नाम ही सुना था। हमारे घर में जो मतलब इनकी चर्चा यूँ होती है कि मेरे घर में भी किसी ने पहले दर्शन नहीं किए थे, मगर मेरे पिताजी पंडित मोतीराम जी वो नागपुर में रहा करते थे, नागपुर वर्धा। तो वहाँ पे एक ताजुद्दीन बाबा थे, इनके कॉन्टेम्पररी साईं बाबा के। और ऐसे ही एक अक्कलकोट महाराज जो गुलबर्गा और शोलापुर के बीच में अक्कलकोट आती हैं, जगह आती है, वहाँ पे रहते थे। ये तीनों ही कॉन्टेम्पररी थे और इन तीनों में एक चीज़ अजब थी कि अगर कोई साईं बाबा के पास चला गया तो कहते थे बेटा कल तुमको जवाब दूंगा। तो कल कहते थे कि देखो तुम अक्कलकोट चले जाओ, वहाँ ही तुम्हारा निदान होगा, जो तुम्हारी मुश्किलात है, जो तुम्हारा जो भी कुछ है वो वहाँ पे है, मेरे पास नहीं है। और कोई ताजुद्दीन बाबा के पास जाता था तो वो कहते थे बेटा बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, मगर तुमको तो शिरडी जाना चाहिए। इस प्रकार का कुछ वो तीनों में एक सामंजस्य था, कुछ भावनाएं मिली हुई थी। और एक हमेशा क्यों ऐसा करते थे पता नहीं, ये इनके पास वो उनके पास, ऐसा त्रिकोण चीज़ें बनती रहती थी। तो मेरे पिताजी ताजुद्दीन बाबा के भक्त थे। वो हमेशा मेरे पिताजी को कहा करते थे कभी समय मिले तो शिरडी जाना, मगर उनको मिला ही नहीं समय। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं साईं बाबा के पास जाता हूँ, उनकी समाधि पे गाता हूँ। पहली बार मतलब 62 में मैं ऐसे हारमोनियम लेकर गा लिया। उसके बाद उनका जन्मदिन था कि 67 वगैरह से होगा, तो उसमें इंचार्ज थे सी रामचंद्र, जो बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो उनको ये प्रोग्राम का इंचार्ज बनाया था कि संगीत आप देखिएगा। तो हमें भी उन्होंने मौका दिया गाने का। तो हम तो साईं बाबा की महिमा के बारे में इतना ही जानते हैं कि भाई बहुत बड़े संत हैं और जिसको भी जो आशीर्वाद दे दें वो फलता है। आज भी फलता है और आज तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़ोर से फलता है। कमाल है, ज्यों ज्यों दिन बीतते जा रहे हैं त्यों त्यों साईं बाबा की महिमा अद्भुत और बढ़ती जा रही है। मैं मगर इतना बाबा की कृपा है कि जब भी जाता हूँ तो मुझे समाधियों वगैरह धोने का चांस मिलता है। मैं समाधि को धो के और फिर वहाँ पे चद्दर उधर चढ़ा के, क्यों इतनी कृपा है। This is an opportunity for everyone to come forward and share their experience, why we are so devoted to Baba. And I usually hesitate to share my experience because it's personal experience, but I sat in front of him in my house, in my mandir, and he non-stop 2.5 hours, 3 hours, he gave me such a wonderful, almost like a discourse, why Satcharitra is so superior to all the other scriptures we have. What is it different from Bhagavad Gita? It has Bhagavad Gita, it has Upanishads. As one time we said, if Upanishads are considered as Kshetrasagra or ocean of milk, and Bhagavad Gita as the butter came out of that ocean, and Satcharitra to us is like a dessert made up of butter.
So it has everything, and the more number of times you read, the more experiences you gain from the book and more depth he will take you. ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति जिस तरह से श्री साई चरित्र सच्चरित्र में है, उसका पाठ करने का अवसर, बाबा की सन्निधि में मिलना भी एक सौभाग्य की बात है। और इस सौभाग्य को आपके साथ बांटते हुए आज के क्रम में हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले श्री साई सच्चरित्र का अध्याय 1। वंदना। गेहूं पीसने वाला एक अद्भुत संत, गेहूं पीसने की कथा और उसका तात्पर्य। पुरानी पद्धति के अनुसार श्री हेमाड पंत श्री साई सच्चरित्र का प्रारंभ वंदना द्वारा करते हैं। प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं, जो कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं, और कहते हैं कि श्री साई ही गणपति हैं। फिर भगवती सरस्वती को, जिन्होंने काव्य रचने की प्रेरणा दी, और कहते हैं कि साई भगवती से भिन्न नहीं है, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रही हैं। फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, जो क्रमशः सृष्टि, स्थिति और संहार करता है, और कहते हैं कि श्री साई और वे अभिन्न हैं। वे स्वयं ही गुरु बनकर भव सागर से पार उतार देंगे। फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं, जो कि कोंकण में प्रकट हुए। कोंकण वो भूमि है जिसे श्री परशुराम जी ने समुद्र से निकालकर स्थापित किया था। उसके बाद वे अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। फिर श्री भरद्वाज मुनि को, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ। उसके पश्चात उन ऋषियों को, जैसे याज्ञवल्क्य, भृगु, पराशर, नारद, वेदव्यास, सनक सनंदन, सनत कुमार, शुक, शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, वैशंपायन, नव योगेंद्र इत्यादि तथा आधुनिक संत जैसे निवृत्ति ज्ञानदेव, सोपान मुक्ताबाई, जनार्दन एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा, नरहरि, उन सभी को नमन करते हैं। फिर अपने पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ और माता को भी, जो उनके बचपन में ही गत हो गई थी। फिर अपनी चाची को, जिन्होंने उनका भरण पोषण किया। और फिर अपने प्रिय ज्येष्ठ भ्राता को नमन करते हैं। और फिर पाठकों या दर्शकों को नमन करते हैं, जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वो एकाग्र चित्त होकर कथामृत का पान करें। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को, जो कि श्री दत्तात्रेय के अवतार और उनके आश्रयदाता हैं, और जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्म की व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं। सर्वश्री पाराशर, व्यास, शांडिल्य आदि के समान भक्ति के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय इस कथा को प्रारंभ करते हैं। गेहूं पीसने की कथा। सन 1910 में मैं एक दिन प्रातःकाल श्री साई बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद में गया। वहां का विचित्र दृश्य देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साई बाबा मुंह हाथ धोने के बाद चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछाया, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना प्रारंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा के चक्की पीसने का क्या तात्पर्य है, क्या लाभ है। उनके पास तो कोई है भी नहीं और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं। इस घटना के समय वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, परंतु उनसे पूछने का साहस किसमें था।
बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी ये विचित्र लीला देखने हेतु तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आईं और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर और उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्तिभाव देखकर वो शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के न तो घर द्वार है और न इनके कोई बाल बच्चे हैं और न कोई देखरेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि यह आटा वो हम सब लोगों में ही वितरित कर दें। इन्हीं विचारों में मगन रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा आटा पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे को 4 समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने को तैयार हुई। तभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे, स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठाकर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम और करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ सीमा पर बिखेराओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में विषूचिका हैजा का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारणार्थ ही बाबा का ये उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वो गेहूं नहीं वरन विभूषिका हैजा थी, विषूचिका हैजा थी, जो पीस कर नष्ट कर दी गई है। इस घटना के बाद सचमुच विषूचिका की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। ये जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा, मेरा कौतूहल जागृत हो गया। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और विषूचिका रोग का भौतिक और पारस्परिक क्या संबंध है, इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो। घटना बुद्धिगम्य सी प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। ये तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वो तो प्राय ठीक ही है, परंतु उसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक और शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पाटों में ऊपर का पाट भक्ति और नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे पीसते थे वो था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा और अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान और आत्मानुभूति संभव नहीं है। यह घटना कबीरदास जी की इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूं। उनके गुरु ने उत्तर दिया, घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही
अग्रसर होते जाओ और तब ये निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। श्री सद्गुरु साई नाथार्पणम अस्तु। शुभम भवतु। तुम्हारे बचन सुनन को आतुर, तुम्हारे बचन सुनन को आतुर, कानन रस कछु गोलुना, कानन रस कछु गोलुना, कछु बोलुना, कछु बोलुना, साईं बचन कछु बोलुना। सुंदर बदन सुंदर, सुंदर बदन सुंदर नयन, सुंदर मुख कछु खोलना, कछु बोलना, कछु बोलना, साईं बचन कछु बोलना। सुंदर मुकुट सुंदर मुकुट, सुंदर मुकुट, गुलाब ही शोभित, सुंदर मुकुट, गुलाब ही शोभित, मेरी किस्मत खोलना, मेरी किस्मत खोलना, कछु बोलना, कछु बोलना, साईं बचन कछु बोलना। शिरडी साईं, शिरडी साईं, विश्व साईं, विश्व साईं, साईं
अपने सदा सहाय